Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. I welcome you all on my channel Concept. Today we will discuss unary operator, unary arithmetic operator. That means increment and decrement operator, plus plus and minus minus. So ये बहुत ही important operator भी है जिसका इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम में बहुत ही important रोल है. So इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे. Okay. We will see the rules for increment and decrement operator. So first rule is all pre-increment and pre-decrement operators or expressions will executed first, pre-increment or pre-decrement. In this, what is pre-increment? So it is comment if we use plus plus before a, then it is a pre-increment. If you use plus plus after variable, then it is post increment. Same, minus minus a will be the pre-decrement and a minus minus will be the post decrement. So in the increment and decrement operator, first all increments and all pre-increment and pre-decrement operator will execute, or we can say pre-increment and pre-decrement operator having higher priority. Then we have to put values after execution of pre-increment and pre-decrement. After that, evaluate all the expressions, then assign the result. It is the basic structure of or basic rules for getting result of increment and decrement or unary operators. So we execute. Okay, ignore the warning. We will use clear screen function so that we will receive fresh output. Okay, so here we use a is equal to plus plus b. Then what will be the value of a and b? So here slash n a equal to %d slash n b equal to %d comma a comma b. Okay, we will see what is the output of this program. So before run, first we have to check a equal to %d and slash n b equal to %d. So in this case, first here we have a two operator. First one is assignment and second is pre-increment. So in both, pre-increment operator having higher priority, so pre-increment will execute first. So यहाँ पर क्या होगा, b का वैल्यू पहले इंक्रीज होगा. b का वैल्यू अभी क्या है, b का वैल्यू 10 है. ठीक है, तो b का वैल्यू पहले क्या होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा. प्लस प्लस दैट मीन्स b इज इक्वल टू b प्लस 1. तो b का वैल्यू होगा 11 और 11 होने के बाद it will after 11 it will assign to a equal to 11. So output will be 11 11. Compile and run. 11 11, a equal to 11, b equal to 11. Okay, again
सो अगेन थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं इस प्रोग्राम में। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, ए इक्वल टू बी प्लस प्लस कर दिया, ए इक्वल टू बी प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, ऊपर के जो रूल्स हैं इसको अगर हम देखें तो क्या होगा, इसमें प्री इंक्रीमेंट नहीं है। ओके, रूल्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब यहाँ पर सारा असाइनमेंट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होंगे, जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। ओके, /n5 all post increment and decrement will execute. All post increment and post decrement will execute after assigning the value left hand side. Okay, again save. So according to this, here we don't have any pre-increment operator, first point. तो क्या करना पड़ेगा हमें, पुट वैल्यू। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, a इज इक्वल टू बी का क्या वैल्यू है 10 पुट करना है। उसके बाद क्या लिखा है, इवेल्युएट द एक्सप्रेशन। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं है तो ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, असाइन द वैल्यू। तो a में 10 असाइन हो जाएगा, और a में 10 असाइन होने के बाद क्या रूल लिखा है, ऑल पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट विल एग्जीक्यूट। तो उसके बाद b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। ओके, तो आउटपुट विल बी, ए का वैल्यू 10 होगा, बी का वैल्यू 11 होगा। सो इसको रन करते हैं हम। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 11। सो आप ये रूल्स अगर याद रखेंगे तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो और कुछ चेंज करके देखते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर अगर हम ऐसा लिख देते हैं बी, तो यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट है कि प्री इंक्रीमेंट है बी के ऊपर, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बी के ऊपर पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से ये इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पर बी प्लस प्लस है, या हम ऐसा कहें कि ये जो आपका लिखा हुआ एक्सप्रेशन है ये इस टाइप से है, ए इज इक्वल टू बी प्लस प्लस एंड प्लस बी, इस टाइप से। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर भी सेम रूल, यहाँ पर कोई प्री इंक्रीमेंट नहीं है तो क्या होगी, बी की वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पर भी 10 होगा, मतलब क्या होगा 10 प्लस 10। उसके बाद एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, कैलकुलेट होगा, तो रिजल्ट जनरेट होगा 20, और ये 20 असाइन हो जाएगा किसमें, लेफ्ट हैंड साइड। दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ए इक्वल टू 20 होने के बाद क्या होगा, जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो बी का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, अभी 10 था तो अब क्या हो जाएगा 11। दैट मीन्स आउटपुट आएगा इसका 20 एंड 11, 20 एंड 11, 20 एंड 11, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। थोड़ा सा और चेक करते हैं इसे। अब आउटपुट क्या होगा, तो अब आउटपुट क्या होगा, असाइन करना। दैट मीन्स कि एंड ऑफ लाइन पर आना। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू होगा 10 से 11। ओके, कमेंट कर देते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर बी का वैल्यू होगा, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट है तो बी का वैल्यू 11 से क्या होगा 12 होगा, और बी में ही असाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हुआ है, तो बी का वैल्यू 12 से क्या होगा 13 होगा, और फिर बी में पहले 13 होगा, उसके बाद ए में ये असाइन होगा, ए इक्वल टू 13 होगा, राइट। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होना चाहिए 13 13। चेक करते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आप कुछ एग्जाम्पल करके देखिए तो आपको 100% इससे क्लियरिटी आ जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।